revolving around 15%, and nobody's talking about 85%, which is your communication. Through communication, you express yourself to the world. We are the only creation on the planet Earth who have or who possess this superpower to express. And because of that expression, we've been able to achieve miracles. अगर देखो तो इंसान ने हवा में परिंदे की तरह उड़ना भी सीख लिया है, मछली की तरह पानी में जाना भी सीख लिया है, इतनी बड़ी इमारतें भी बना ली है. All happened because we were able to express ourselves. Only you take expression out of human being, we are left with nothing. And imagine how irony it would be that मुझे as a human being express करना ना आता. You know a lot of knowledge and you are not able to express yourself. You will be sleeping on such a huge opportunity in your life that you have no idea about. On the other hand, you know little, but you know how to express yourself, how to express the knowledge that you possess. Then you are far better than a person who knows a lot but is not able to express. And expression happens through communication. Every day, every minute, every second, you are giving your introduction to the world through expression. And there are lots of ways to do that we'll learn in this session. You want to become a great communicator after the session. I don't commit that. I don't have a magic pill. But I can commit that after this session, you will at least have a sense या थोड़ी सी मेंटल स्टिमुलेशन जरूर होगी इस चैप्टर के या इस स्किल के इर्द गिर्द कि ये भी कुछ चीजें सीखने वाली या इसमें भी मुझे टाइम लगाना चाहिए. I also coach C-level executives on presentation skills and imagine कि इतने late career में जाकर अगर आपको ये realization हो कि this is a major building block that is blocking my elevation into the positions where I could have been reached if I only knew how to present well. You are at a, आप इसे कितने लोग अभी current students हैं? Please raise your hand. सारे students हैं. Alright. So you'll be sitting in interviews, of course, and you'll be going and seeking out opportunities in your career. और जो major चीज आपको help करेगी to get those opportunities, वो आपकी communication skills है. क्योंकि एक simple सा फंडा अपने दिमाग में बिठा लो कि जहाँ पे भी जाओगे ना सामने इंसान बैठे होंगे. There are human beings who are evaluating you. और इंसान जो होता है ना, इंसान इमोशनल बीइंग. हम जितने मर्जी कोशिश कर लें कि हम बड़े रैशनल, बड़े सियाने हैं, बट एट कोर वी आर प्योरली इमोशनल बीइंग्स. आप इमोशनल बायस किसी इंसान से एरेडिकेट नहीं कर सकते. बल्कि एक किताब है 21 Lessons of 21st Century, नोआ हरारी की, वो कहता है कि जुडिशरी सिस्टम जो है वो बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएगा. यू नो व्हाई? बिकॉज जज को जितना मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दो, सिखा दो, रटा दो, आप उसमें से इमोशनल बायस या ह्यूमन बायस को एरेडिकेट नहीं कर सकते. उसके फैसलों में वो रिफ्लेक्ट होगा बिकॉज इट इज एन नेचुरल टेंडेंसी कि ह्यूमंस के अंदर वो होता है. तो जो इंटरव्यू आपके सामने बैठा हुआ है 15 मिनट या 20 मिनट में, क्या उसके पास कोई ऐसा टूल है, कोई ऐसी तार है तुमको लगाएगा और अंडरस्टैंड कर लेगा कि तुम्हारा स्किल फ्रॉम स्केल ऑफ 1 to 100 कहां पे फॉल करते? नहीं. He'll only receive whatever you will share in that 15 minutes. And we don't only listen to the words that you are sharing, but we receive the whole package as a human being. Even sometimes you are sharing the sweetest words, but you're not sharing it in a way it won't create any impact. कभी हैरान हुए कि क्या चक्कर है कि दो डिफरेंट लोग, एक इंसान आता है लोगों के सामने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता है, उसके पास सारा नॉलेज होता है, सारी टूल्स टेक्निक्स होती हैं, सारी प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट ही इज ट्राइंग हिज ऑल बेस्ट, बट ही इज नॉट एबल टू क्रिएट द इम्पैक्ट कि कोई बात सुन ही नहीं रहा उसकी या असर ही नहीं हो रहा. बट ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर ह्यूमन बीइंग हु केम इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड स्टार्टेड स्पीकिंग, एंड प्रोबब्ली ही इज नॉट शेयरिंग समथिंग, बहुत कोई विजडम की बात वो नहीं भी कर रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है, बट ही इज शेयरिंग इन अ वे दैट इट इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट. और ये जो चक्कर है ये सारा ये कम्युनिकेशन का ही है. एंड इट इज अ स्किल दैट कैन बी लर्न, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू फोकस और इन्वेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर स्किल. इफ यू आस्क मी या मेरे जितने भी ट्रेनिंग सेशंस में आपका बात भाई सही होता है कि ये जरूरत क्यों है सीखने, इसका जवाब दें आप. Why do we need to learn? सारी जिंदगी तो हो गई है मुझे कम्युनिकेट करते हुए, मैं बैठ गया ये सीखूंगा बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है. होनी चाहिए, एथिक्स होनी चाहिए. व्हाट एल्स? आइडिया होना चाहिए, आइडिया में बात किस अंदाज में करनी, कन्वे किस अंदाज में करनी, ताकि दूसरा फिर आपको सही तरह समझ सके.
Alright, what else? I think we are not there yet. As in, we have a lot of knowledge. 16 साल से पढ़ रहे हैं, but we lack the ability to express it. We lack the ability to communicate it properly, and that is harming our potentials. Alright, wonderful. What else? There is a difference between communicating and effective communication. You have to assess every situation and effectively communicate according to the needs of the situation. क्या बात? There's a difference between सिर्फ communicating और effective communicating. ठीक है, what else? बिल्कुल सही. Everybody is absolutely 100% right. कोई और कुछ शेयर करना चाहिए? आपकी तरफ से कुछ बताइए. Through communication, we can manipulate. Manipulate. If we are in front of an interviewer, we have to manipulate. Manipulate is a bad word. Let's not use that. I'll give you an alternative word for that. Influence. 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 ये मैं सेशन में पहले बैठा हुआ इसलिए गया. एक्सप्रेशन की मैंने बात की. देखो, एक एक्सप्रेशन तो आप खुद को एक्सप्रेस करते हो, दूसरा आप अल्लाह ताला को, अपने गॉड को एक्सप्रेस करते हो अपने थ्रू. God needed a way to express himself, and it is from the finest of his product. कभी कभी ना बात सुन के बंदा सुन होता है. किसी को I love you भी दिन में 50 दफा बोलो ना तो 51th टाइम और दांत की चपेट मारेगा. Stop. Because जब एक बात कान में बहुत दफा पड़ती है तो उसका असर खत्म हो जाता है. इसी तरह इतनी दफा सुना आजकल में इतनी दफा सुन चुके कि आप सुन लोगे. We don't understand the essence of it. We are the finest of all the products that have been created on the planet, and through us, he actually expresses himself. जैसे एक पेंटर होता है ना, उसकी एक मास्टरपीस होता है. वो एग्जीबिशन में ऐसी जगह लगाता है जहां पे एंटर होते हैं उस पे नजर पड़े. 2 स्पॉट लाइटें भी लगाते हैं उसके. फिर जो भी एंटर होता है वो देखते हैं ब्यूटीफुल. ये किसने बनाई है? You know that painting becomes the expression or तारुफ of that painter. And imagine, here I am as a human being, the best of all the products, and I fear to stand in front of people and I get nervous, in front of other human beings. How unfortunate that is. Do you know that public speaking is #1 fear among humans? And this saddens me. Death is #2. Public speaking is #1 fear that humans face. Where have we come with this? मतलब we have been expressing ourselves. हमारे पास लैंग्वेज नहीं थी, तब से हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं. हम वो पत्थरों से घरों में ड्राइंग्स करके एक्सप्रेशन देते होते. आज लैंग्वेज है, ये है और पता नहीं क्या कुछ है हमारे पास. And still we fear to stand or to present ourselves fully in front of other human beings. इंटरव्यू में अगर मेरे पसीने छूट रहे, मतलब why is it happening with me as a human being? जो भी है मेरे सामने, whoever that person is, president है, prime minister है, VP है, CEO है, he's just as human as me. I should not be fearing that human being. क्योंकि नर्वसनेस का अजाब ये है कि जब नर्वसनेस टेक ओवर होती है तो आप भूल जाते हैं जो आपको ऑलरेडी पता होता है. फिर आप इंटरव्यू से बाहर आ गए, शिट मैन, मैं इसके बजाय ये बोलूं, तो ये कहना चाहिए, मुझे ऐसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए. यहां पे मैंने बंद किया. क्योंकि जब नर्वसनेस होती है तो आप सारी रात रट्टा लगाते हैं प्रेजेंटेशन का. सुबह आते हैं, प्रेजेंट करते हैं, लोग बहुत सारा कुछ हो जाता है. Because when nervousness takes over, you forget what you know. Because आप पूरी पोटेंशियल पे फिर नहीं परफॉर्म कर पाते. तो अगर ये फियर हो इंसान में, तो या इंसान का एक्सप्रेशन अच्छा ना हो, तो फिर इंसान अपनी फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बात तो ये होगी. दूसरी बात यह है कि प्रोफेशनली अगर मैं आपको चीट कोड बता रहा हूं, बहुत दिल से, मेरी ख्वाहिश आपकी बात समझ आ रही है. जैसा से ही कम फ्लाई विद मी होता था GDY से, चीट कोड लगाओ तो आप करना शुरू हो जाए. इस तरह से ये कैरियर का चीट कोड है. If you only know how to communicate well, you will open so many locks for you that you have no idea. Only through good communication. और इसके पीछे देखो, जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है ना, वो चलता है, वो वैल्यू ड्रिवन है. सेठ के माइंड में ये होता है कि मैं तुमको $1 दूंगा, तुम बदले में मुझको $2 की वैल्यू डबल कर लेते हैं 100%. मैं $1 दूंगा, तुम मुझको $2 की वैल्यू प्रोड्यूस करते हो. अब अक्सर ऐसे होता है कि एक एम्प्लॉई जो होता है वो टेक्निकली बहुत अच्छा होता है. ही इज वेरी गुड विद ऑल द टेक्निकल स्किल्स, बट ही इज नॉट गुड विद पीपल्स.
ना वो अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, उससे बात करनी नहीं आती, बाकी डिपार्टमेंट्स उसकी बनती नहीं है। तो जब एलिवेशन की बात आती है तो वो जो दूसरा वाला होता है जो शायद बहुत ज्यादा वैल्यू ना प्रोड्यूस कर रहा हो, बट ही इज वेरी गुड विद पीपल स्किल्स, उसकी एलिवेशन हो जाती है। फिर ये उड़ता रहता है, इधर आजकल जब नेपोटिज्म होता है, फेवरेटिज्म होता है, ये होता है, फूड पॉलिश है, and we have all these philosophies to satisfy ourselves. देखो एक बात याद रखना, तुम नौकरी में जाने से पहले कि अगर सेठ को फूड पॉलिशिए को एलिवेट करना है तो उसके पास इतना पैसा है कि वो 2 फूड पॉलिशिए वैसे हायर कर लेगा फूड पॉलिश करने के लिए। वहां पे इट्स ऑल अबाउट वैल्यू, एंड व्हेन यू एक्सप्रेस वैल्यू यू आर मोर वैल्यूएबल एज अ पर्सन, बिकॉज तुम ज्यादा लोगों से वैल्यू प्रोड्यूस करवा सकते हो, तब तुम टीम्स ले सकते हो, तब तुम्हें 100 बंदों की टीम मिलेगी। अगर सिर्फ तुम लैपटॉप पे टेक्निकली अच्छे हो तो फिर तुम्हें वहीं पे फंसा के रखेगी ये पूरा जो पॉकेट सिस्टम है। तुम अगर एक रनिंग हॉर्स हो तो तुम्हें दौड़ाते ही रहेंगे, लेकिन इफ यू आर गुड विद एक्सप्रेशन तो ये फिर तुम्हें टीम्स देंगे और वहीं पे एलिवेशन छुपा है। यहाँ पे शायद तुम्हें इंक्रीमेंट देके 2-3 टाइटल चेंज करके तुम्हें खुश कर दे, तुम लिंक्डइन पे पोस्ट पे लगाओगे आफ्टर हार्ड वर्क ऑफ 2.5 years and finally promoted to this position। उसमें एक्चुअली में कुछ भी नहीं होगा। You know, if you're not given teams, then जितने मर्जी टाइटल इधर चेंज करने, आपकी वो कैपेसिटी लीडरशिप वाली डेवलप होगी, वो तभी आपको मिलेगा जब आपका एक्सप्रेशन अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगी। So that's why it is very important to learn। I hope ये वाइड आंसर हो गया, हम सीरियसली लेंगे सारी कॉन्वर्सेशन। अगली बात ये है कि every second you are communicating, even right now sitting, not saying a single word, you are sharing so much information about yourself that you have no idea about. And that information is creating a perception of you in the minds of people around you. The moment you walk into a room, you stand in front of people, you sit, you do whatever you do with your body language, it is communicating lots of information about you. अगर मैंने हर टाइम ही कोई ना कोई अपनी परसेप्शन क्रिएट करवा रहे होना है, तो क्यों ना मैं सीख लूं कि कैसे एक राइट परसेप्शन क्रिएट करवानी है लोगों के माइंड के अंदर। दूसरी जो मेंटालिटी है, मेंटालिटी से आप छोटी सी एक्टिविटी है, वो स्टैंड अप। मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रहा हूं एक बार, ऑलराइट अभी वो खत्म हो गया। अच्छा, अभी आपने ये करना है कि इस रूम के अंदर सारे लोगों से मिलना है, लेकिन मिलना इस तरीके से है कि जिससे मिल रहे हो you hate that person the most in the entire world, and this was the last person you wanted to see today। तुम्हें नजर आ गया, you have to hate that person and greet that person। सबको ग्रीटिंग करनी है। माइंडसेट मैंने तुमको बता दिया, माइंडसेट ये है कि you hate that person the most in the entire world, and this was the last person you wanted to see today। Start. Go around, move around from your chairs and meet everybody. Get out of your comfort zone। You are that person। चले move Ahmad, move, meet as many people as you can। What's your How are you doing? But now you will meet as if you love this person the most in the entire world। दोनों सिचुएशन, पहले रूम की एनर्जी फील की कैसे थी, एकदम से रूम की एनर्जी शुरू हो गया, लाउड हो गए सारे, जब पत्नियां भी चल रही, बट एकदम से पूरी आउटपुट चेंज। हालांकि मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी कि पहली दफा आहिस्ता बोलना है, ये करना है, वो करना है, ऐसी बॉडी लैंग्वेज करनी है। आई डिडंट गिव यू एनी इंस्ट्रक्शन, but I only gave you instruction to change or shift your mindset, and by only changing or shifting your mindset, your whole outcome was completely different, even though you were not instructed to change it। It happened automatically because ये byproduct होता है। अब दो तरह के माइंडसेट होते हैं एज ए कम्युनिकेटर। अब देखो ये नर्वसनेस क्यों आती है बंदे के ऊपर। नर्वसनेस तब आएगी जब तुम्हारा माइंडसेट होगा रिसीवर वाला, टेकर वाला। टेकर जो होता है ना, वो हमेशा घबराया हुआ। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों के सामने और मैं ये सोच रहा हूँ मुझे पसंद करेंगे, पसंद करेंगे, मुझे दाद मिलेगी नहीं मिलेगी। इफ आई एम ऑल अबाउट टेकिंग समथिंग, आई कम अंडर नर्वसनेस। बट इफ आई कम हियर विद द माइंडसेट दैट आई एम हियर टू गिव वैल्यू टू दीज पीपल, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज मेरे अंदर ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट आ जाएगी। अगर मैं एक इंटरव्यू में एक भिखारी की तरह जाता हूँ, डेस्परेट होके, और ये सोच के जाता हूँ दैट आई एम देयर फॉर बेगिंग अ जॉब, देन मेरी बॉडी लैंग्वेज पूरी डिफरेंट होगी।
क्योंकि मुझे खुद पे यकीन ही नहीं है कि I actually deserve this particular position या I have value to give to this organization. Now understand, you are there to give your value. You're not there to ask for money or take money out of their pockets. अगर मेरा माइंडसेट ये है कि मैं वहां पे कुछ लेने अल्लाह करे मेरा किसी का तो ऑटोमेटिकली मेरे नर्वसनेस भी होगी, मेरे हाथों भी खुलेंगे, गला भी खुश होगा, आवाज भी नहीं निकलेगी, कभी कभी नाम भी भूल जाएगा। ये सारे मसले होते हैं एक्चुअल में। तो लेकिन अगर मैं जा रहा हूँ ये सोच के पहले से अपना ब्रेनस्टॉर्म करके कि आई एम देयर टू गिव वैल्यू, मेरे अंदर ये चीजें हैं, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, एंड आई बिलीव इन माय एबिलिटीज, आई गो देयर टू offer my particular value. मेरी तो ठीक है, नहीं भी तो it's okay. I'll find another option. When you go there with the mindset to give, even in presentation, you focus on your message instead of focusing on yourself. When you focus on yourself and you start comparing yourself, then ये क्या सोचेगा, फलाना क्या सोचेगा, you are self-centered because you want to take appreciation, you want to take applause, you want to take good feedback from people. ये सारा तुम्हारे इख्तियार में नहीं, तुम्हारे इख्तियार में सिर्फ इतना है कि अपने मैसेज को खूबसूरती से डिलीवर कर लो. Think of yourself as a giver. So shifting this mentality also helps a lot. Now, if you look at the data, $3.1 billion annually blue chip companies spend करती हैं अपने employees के ऊपर ताकि वो अच्छी communication करें. It's that much important. पाकिस्तान में तो हमें जाके समझाना पड़ता है कि ये एक बड़ी important चीज है, ये भी स्किल है, इससे भी काम होना चाहिए. 62.4 million ये 400 कंपनीज का डेटा है जिसमें 10,000 एम्प्लॉइज को लिया गया. इतना नुकसान होता है एनुअली अगर आपके लोगों की पुअर कम्युनिकेशन है. अगर हम इस प्रोसेस की बात करें कम्युनिकेट, हमारे पास A4 साइज पेजेस होंगे अगर अपनी खुद ले रहे हैं. सब्जेक्टिव लॉस से क्या मतलब होता है, खुद बताइए. लिखना subject, alright, what else? To each his own, depends on the person. उसकी इंटरप्रिटेशन जो भी है. परफेक्ट. कोई और बताना चाहिए? कॉन्टेक्सचुअल होता है, जो कॉन्टेक्सचुअल होता है, जो वेरी करता है फ्रॉम परसेप्शन टू परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन टू ह्यूमन. कम्युनिकेशन का जो मसला है या जो खूबसूरती है, दोनों ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वो ये है कि ये सब्जेक्टिव है. कभी कभी मुझे ये लगता है कि मैंने कम्युनिकेट कर दिया है लेकिन आगे कुछ और समझ जाता है क्योंकि ये सब्जेक्टिव इन नेचर है. हमारे पास अगर पेजेस आ जाते टाइम तो हम छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जिससे आपको आज शो एक्टिविटी को लेट्स पेज फॉरवर्ड. अच्छा, ये पूरा जो है वो कम्युनिकेशन का फ्लो है जो आप अंडरस्टैंड करना है. फ्लो किस तरह से है कि सबसे पहले एक सेंडर होता है. इस टाइम पे सेंडर कौन है? फॉर एग्जांपल मैं. I control the conversation. Whoever is sender, he or she controls the conversation. उसके पास authority होती है. सेंडर क्या करता है, उसके दिमाग में सबसे पहली बात याद रखनी है, उसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया की शक्ल होती है. अगर तुम इंटरव्यू में जा रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में अपने बारे में कोई ना कोई इमेज होगा. अगर तो वही खराब है तो फिर तो बहुत बड़ा मसला है. ठीक है, अगर उसी में कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि यू आर लाइक अ पेंटर. पेंटर क्या करता है, वो आइसोलेशन में बैठता है, तन्हाई में वो एक आइडिया को कंसीव करता है दिमाग के अंदर, फिर वो उस आइडिया को दिमाग की दुनिया से हकीकत की दुनिया में लाता है. उसके पास 3 टूल्स होते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए. कौन कौन से? नंबर 1 पेंट्स, कैनवस, ब्रश. ये 3 उसके मेजर टूल्स हैं जिससे वो ट्रांसपोर्ट करता है ख्याल की दुनिया से हकीकत की दुनिया में एक आइडिया को. अब एज अ कम्युनिकेटर मेरा कैनवस, अभी मैं सेंडर, मेरा कैनवस क्या है इस टाइम पर? आपका दिमाग टू बी स्पेसिफिक, योर माइंड, because that's where the whole picturization is happening. मेरे दिमाग में एक आइडिया है और मेरा जो ब्रश है, पेंट ब्रश, वो मेरी डिलीवरी होगी, मेरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी, और मेरे जो अल्फाज है वो मेरे पेंट्स हैं जिनकी मदद से मैं वो सारी इमेज आपके दिमाग में क्रिएट कर रहा हूं. अब पहली बात तो ये कि मेरे अपने दिमाग में आइडिया की शक्ल ठीक होनी चाहिए. अगर वो ठीक होगी तो एग्जैक्टली वो इमेज क्रिएट होगी. अगर मुझको खुद क्लैरिटी नहीं है तो कभी भी आगे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि क्लैरिटी हो. ठीक है, तो नंबर 1 ये बात है. अब मेरे दिमाग में जो भी आइडिया की शक्ल है, ये इनको कितनी मिले उससे. अच्छा, ये वैसे आप एक लेके आगे पास कर दीजिए, आगे काम आएंगे हमारे को. सारे पिकनिक पे आए हैं, कोई पेन, कुछ नोट पैड, कुछ भी है, संभाल के रखो. वेरी नाइस. You are the last person who can avoid the लिखने से थोड़ी देर तक ज्यादा याद रहती है.
वरना चुप हो जाएगी कि सारी knowing is not of any value. मेरे दिमाग में जो भी आइडिया की पिक्चर होगी उस पिक्चर को मैं क्या करूंगा एनकोड करूंगा एक एनकोडिंग के लिए मेरे पास मेरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और मेरे अल्फाज से मैं उसको एनकोड करूंगा और वो एक मैसेज बन के हवा में आ जाएगा। अब मुझे ये लगता है या मेरी ना एंडी होगी एज अ सेंडर अगर मैं ये समझ लूं कि जो मैसेज मुझे लगा मैंने पहुंचा दिया वो एज इट इज रिसीवर तक पहुंच गया, ऐसे नहीं होता। एक और बीच में इंटरेस्टिंग फिनोमेना हो रहा होता है जो कि डीकोडिंग का प्रोसेस और ये कौन करता है? ये रिसीवर करता है। फॉर एग्जांपल आई वांट ऑल ऑफ यू टू थिंक ऑफ अ डॉग, एनी ब्रीड। डू यू हैव एन इमेज इन योर माइंड? कौन सा? लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड, पॉम्स्की, जर्मन शेफर्ड। आपके दिमाग में ये पॉम्स्की क्यों आया? सॉरी, इसकी रील देखी थी, आपके दिमाग में क्यों आया? एक दोस्त के पास है, आपके दिमाग में भाई? मेरे एक फ्रेंड के पास। आपकी फ्रेंड के पास है, आपसे भी पूछा था, आपके दिमाग में क्यों? क्यूट होता है, ऑलराइट, यू फाइंड इट क्यूट, स्ट्रॉन्ग होता है, ऑलराइट, क्लियरिंग नेचर, यू लाइक क्लियरिंग नेचर। अब क्या हुआ, मैंने एक इंफॉर्मेशन दी, आई वांटेड यू टू थिंक ऑफ अ पिक्चर। अब हो सकता है मैं कुछ और चाहता था, आपके लैब्राडोर का बोलूं, हाँ, हो सकता है मैं चाहता था लैब्राडोर, आप सारे सोचें, हो सकता है बीच में तुक्के से किसी ने वही सोच लिया हो, दैट वाज अ तुक्का, दैट वाज नॉट व्हाट एक्चुअली हैपेंड थ्रू अ प्रोसेस। हुआ ये कि आपने डीकोडिंग की, जब इंफॉर्मेशन आती होती है तो रिसीवर डीकोडिंग करता है अपने एक्सपीरियंशियल फिल्टर की बेसिस पे। एक फिल्टर लगा होता है जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल फिल्टर। मैंने रील देखी थी, मेरे दोस्त ने रखा हुआ था, मुझको वो क्यूट उसकी नेचर पसंद है, मुझे जो है वो इस तरह की जरा स्ट्रॉन्ग तरह की एट्रीब्यूट पसंद है, तो आपका पर्सनल फिल्टर आ जाता है उस इंफॉर्मेशन को गुजारता है वहां से और आप उसके हिसाब से कोई पिक्चर क्रिएट करते हैं। अब ये अगर मैं रोकना चाहता हूं कि डीकोडिंग ना हो और एज इज क्रिएटर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मजीद डिटेल्स देनी पड़ेंगी। एक और मसला ये होता है कि बीच में नॉइज भी होती है। नॉइज से क्या मुराद है? कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन होगी, कोई ना कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा जिसकी वजह से शायद आपका मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाए। तो आप इसका हल ये होता है कि आप क्या करते हैं, रिसीवर से फीडबैक लेते हैं। आप पूछते हैं उससे कि तुम्हें क्या समझ आया, वो बताता है मुझे यही समझ आया। आप कहते हैं यही तो नहीं समझना, ये तो बिल्कुल तुम ऑपोजिट समझे, मेरा मतलब नहीं। आप देखिए रिलेशनशिप का अक्सर मसला ही होता है, तुमने ये कहा वो मैंने नहीं कहा, मेरा तो ये मतलब नहीं था, नहीं तुम्हारा ये मतलब, बिकॉज इट इज सब्जेक्ट। आपने कुछ कहा, वो कुछ समझ लिया गया, लेकिन याद रखना हमेशा गलती किसकी होगी? हमेशा गलती सेंडर की, because it was your responsibility. Lots of time you don't want to take responsibility. It's very hard to do that. It takes a lot of courage to do that, to accept. Organizations के अंदर मैनेजर सबसे बड़ा शोगल ये लगा हुआ होता है, मैनेजर को खुद नहीं पता होता उसने क्या करना है। वो टीम को बैठा कहता है want you to do this. लोग अजीब व गरीब चीजें लेके आ जाते हैं, और ये कॉर्पोरेट वाला इसको हंसी ज्यादा आएगी, तो वो अजीब व गरीब चीजें लेके आ जाते हैं। अब मैनेजर कहता है तुम्हें तो मैंने ये नहीं कहा, तुम्हें तो मैंने ये कहा था, वो कहता है आपने यही कहा। उसको खुद बेचारे को क्लैरिटी नहीं थी, वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अचानक से कुछ खूबसूरत सा होके आ जाए, और वो फिर एंड ब्लेम उन पे डालता है, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हारा दिमाग ही नहीं है, तुम पहले कहां पे थे, he starts to blame them, but it is never their responsibility. It is always the sender who was in control to communicate. या मैं अगर इंटरव्यू में गया हूं, मैं कहता हूं मुझे समझ ही नहीं आई, I was not able to convince them or to create the good picture of mine in their minds. I was responsible to create that image, based on which they had to make a decision. Either we want to select this person or reject this person. So this is the whole process. Prerequisite of a great communicator क्या है? आपको क्या लगता है? Prerequisite का मतलब क्या होता है? First we know what the Sorry? Requirements for prerequisite. Requirements. Prerequisite का मतलब requirements. पहले से जो चीज होनी चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, जो कि लाजमी होना चाहिए, जिसके बगैर चारे नहीं। That has to be there beforehand in order for other things to come in and create something. For example, I want to cook biryani.
What is the prerequisite ingredient? Rice have to be there in order to cook biryani. बाकी हम कोई नॉर्मल बदल निकाल लेंगे, चिकन करी कनौर क्यूब्स डाल देंगे, या शाम का बिरयानी मसाला नहीं, ब्रोड मसाला डालेंगे. But chawal has to be there. For a good communicator, what do you think is a prerequisite? That has to be there, or that is fundamental. Clarity of the idea. Alright, what else? कभी ऐसे इंसान देखा है जिसको बहुत अच्छी क्लैरिटी हो, वो PhD हो, एक्चुअल में PhD, उसने रिसर्चें की हो किसी टॉपिक पे, but he's still not a good communicator. I've seen so many. और हमारे जब PhD प्रोफेसर आते थे तो हम पहले ही प्लान कर देते थे कि यार maybe the ability to put yourself in the other person's shoes. Your audience is shoes. being empathetic. Alright, what else? रिसीव करना कि वो समझने बात को कि नहीं किस तरह समझेंगे. ठीक है, having this understanding कि आप कुछ नहीं words ठीक है, गुंगा ना हो at least रिसीवर को अंडरस्टैंड करना. अच्छे लफ्ज हो, ऐसे अल्फाज हो जिनसे जो वाकई में एक पिक्चर बनाना चाहते हो वही बने. ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्रीरेक्विजिट है नॉलेज ऑफ द रिसीवर. रिसीवर कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे सोच रहा है. अंडरलाइनिंग उसका कितना नॉलेज आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, कि उसको बात की कॉम्प्लीमेंट करेगा. आपने पहले बात की एक्सपीरियंशियल फिल्टर है ना. हाँ. उसको अगर ये आइडिया हो कि अगला बंदा इस मैसेज को किस तरह इंटरप्रेट कर सकता है, मुझे ही आइडिया हो जी. ऑडियंस अवेयरनेस. ऑडियंस अवेयरनेस और वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्रीरेक्विजिट है नहीं. कभी कभी बहुत लार्ज ऑडियंस होती है, 1000 का मजमा होता है फॉर एग्जांपल, वहां पे आई कैन नॉट गो टू एवरीबॉडी एंड अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंस. आई कैन गेट अ गेस. कोई सैंपल के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ ये सारी यूनिवर्सिटी के हैं, यहाँ पे मैं थोड़ी कैजुअल लिंगो भी इस्तेमाल करूंगा, थोड़े जोक्स भी और तरह के करूंगा, लेकिन शायद अगर फौजियों के सामने उनको ट्रेनिंग कराने जाऊँ तो वहाँ पे मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होगी, वहाँ पे चॉइस ऑफ वर्ड्स थोड़ी सी डिफरेंट होगी. यस, बट सबको तक मैं नहीं पहुंच सकता, हर बंदे तक नहीं पहुंच सकता. एक जनरलाइज कोई अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ. वापस आते हैं जहां से मैंने बात स्टार्ट की थी, तो कैसे वापस आता हूँ. हमने शुरू में बात की थी एक्सप्रेशन. हमने ये कहा था कि एक्सप्रेशन हर टाइम हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. जो अच्छा एक्सप्रेशन जानता है उसके पास एक सुपर पावर आ जाती है. हमें बचपन से ना सुपर पावर पोजेस करने का बच्चों को शुरू से शौक होता है, इसीलिए स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बच्चे बड़ा फैसिनेट होते हैं इन सारी चीजों से, बिकॉज वी ऑलवेज हैव दिस human desire to possess something that is beyond human. But I have found that there is only one thing which is supernatural in nature, which humans can possess in today's world, and that is the ability to influence other human beings. It is very hard, not manipulating. Yeah. The ability to influence other human beings. It is so powerful, ladies and gentlemen. If you become a person of influence, now remember these words, very important words, which I am going to address. Once you become a person of influence, whatever you utter from your mouth, it is taken as truth and people believe in it. Whatever you say. It is so dangerous but so powerful at the same time. Let's take an example of Hitler, a very ordinary human being who has managed to bring such a large massacre which human history has never seen before. उसने लोगों को कन्विंस कर लिया कि गाइस आओ चलो और फलां नस्ल को दुनिया से खत्म करते हैं, और हर कोई मान गया. इमेजिन मैं आपको यहाँ पे जो ना कन्विंस कर दूं कि चलो आओ जो है वो फलां नस्ल के डिपार्टमेंट को खत्म करते हैं जड़ से, और आप मान जाए फिर नारे मारते के साथ. Imagine how powerful I will become. And same influence, every leader in a human history, leader और communication, they go by side. एक लीडर मुझे हिस्ट्री में से निकाल के ऐसा दे दो who was not a good communicator through which he has built his influence. सारी आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पे फलानी रेवोल्यूशन या चर्चिल को उठा के देख लो, every leader जिसने इन्फ्लुएंस किसका है पॉलिटिकल लैंडस्केप में, तुम देखो आपको नजर आएगा कि एक बंदा होगा जो एक नैरेटिव सेल करने की कोशिश करेगा और वो सेल हो जाएगा, बेशक उसके पास कोई भी वो मशीनरी ना हो. ऑन द अदर हैंड कोई और होगा, वो इतनी जोर लगा रहा होगा लेकिन कोई उसका नैरेटिव सेल ही नहीं हो रहा, कोई उसका नैरेटिव मानेगा ही नहीं. वो कस्टम भी खा ले, वो सारी प्रेजेंटेशन भी दिखाए, वो सारा डेटा भी दिखाए, बट नोबडी विल लिसन टू दैट पर्सन इफ दैट पर्सन इज नॉट इन्फ्लुएंशियल.
अब इन्फ्लुएंस कैसे आता है? वो आता है जो प्री रिक्विजिट है हमारा कम्युनिकेशन का, which is confidence. Confidence is the prerequisite, and confidence is equal to influence. अब ये बात मैं आपको कॉन्फिडेंस को जल्दी से खड़ा होकर अपनी कुर्सी से कॉन्फिडेंस, कितने लोगों ने कॉन्फिडेंस पहली दफा लफ्ज सुना? रेज योर हैंड। किसी ने नहीं, सारों को पता है। खड़े होकर मुझे जल्दी से इसकी डेफिनेशन खड़ा होकर कॉन्फिडेंस एक डर नहीं लगता किसी और से। जो तुम खड़े हुए हो ये कॉन्फिडेंस की वजह से खड़े हुए, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस है वो है क्या जिसकी वजह से तुम खड़े हो? किसी से डर नहीं, किसी से डर नहीं है क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है। तो जो है वो क्या है? lack of सॉरी, lack of fear, इट्स lack of nervousness. लैक ऑफ नर्वसनेस। देखो मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम डिस्क्राइब करो ये क्या है, रोशनी, तुम कह रहे हो रोशनी एब्सेंस ऑफ डार्कनेस है, वो तो है, लेकिन ये क्या है? Can you describe this? Great effort. Clap for him. Confidence is not the absence of fear; it's going ahead despite the fear. Is confidence about the ability? इस तरह तो सारा मेरा नैरेटिव ही वो खत्म हो गया। आप तो यूनिवर्सिटी के नए नए ग्रेजुएट्स हैं, फॉर एग्जांपल, आपकी तो टेक्निकल कॉर्पोरेट की तो एबिलिटी ही नहीं है, यू नो, आप फिर किस बात से कॉन्फिडेंट होके जाएंगे? बिलीव इन योर एबिलिटी, दैट इज एक्चुअली कॉन्फिडेंस। ठीक है, नहीं जाते बहुत डेफिनेशंस हैं। कॉन्फिडेंस वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कॉन्फिडेंस। पता क्या चक्कर है? कॉन्फिडेंस हमें पता है, ये हमने देखा हुआ है अपने सामने होते हुए, कभी कभी एक्सपीरियंस भी किया, लेकिन डिफाइन करने की बात आती है तो पता नहीं क्या है, पर है बड़ा खूबसूरत, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जब इंसान कॉन्फिडेंट होता है ना, वो ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ, उसको मैं कहता हूँ कि वो ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ गॉड होता है। वो स्पेन, बहुत पुरानी जो स्पेन की हिस्ट्री है, तो वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी रहती होती थी। वो जो जंगलों में नहीं पतशत पहन के डांस करते रहते, तो वो वाली कम्युनिटी वहां पे रहती होती थी। तो जब फुल मून होता था तो वो आग लगा के उसके इर्द गिर्द डांस करते होते थे। तो वो डांस करते करते अचानक एक बंदे को कुछ कैफियत तारी होती थी, वो अजीब तरीके से मस्त होकर नाचना शुरू करता था। जैसे ही वो कैफियत किसी पे तारी होती थी, बाकी सारे जो है वो डांस करना छोड़ देते थे और चैंट करना शुरू कर देते थे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एज इफ कि अल्लाह या गॉड हैज कम इनटू दिस बीइंग। उसके बाद वो बाद में वहां पे इन्वेजन हुआ, वो आपको पता होगा, वो जो अप्रैल फूल वाली कहानी भी है कि फिर उन सारों को उठा के वो पानी में भी फेंका गया। फिर वो अल्लाह ओला में कन्वर्ट हुआ। अभी आपने देखा होगा कि किसको फुटबॉल का शौक है तो वो स्टेडियम्स में जब भी कोई अच्छा परफॉर्म करता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दे स्टार्ट चैंटिंग ओला ओला ओला। If you see confidence happening in front of you, you see that phenomena happening where somebody is so beautiful, so comfortable in their skin, so at peace, so calm, you know, they have no fears and no insecurities, and they are just okay for people to look at them, you know, they become very beautiful. And when you see confidence in front of you, what happens is, for example, when you see confidence happening in front of you, it's so beautiful that you say wow in your subconscious. तुम अपने लाशों में कहते हो wow, beautiful. And when you say wow, आपके अंदर एक एस्पिरेशन पैदा होती है, एस्पायर करना शुरू करते हो। एस्पिरेशन का मतलब क्या है? डिजायर करना, चाहना। आप चाहना शुरू, ये भी लाशऊरी है, मतलब ये तुम चाह के नहीं कर रहे होते, ये सबकॉन्शियसली हो रहा होता है। तुम एस्पायर करना शुरू करते हो कि ये कैफियत मेरे अंदर भी है, या मैं भी इतना कॉन्फिडेंट हूं। दैट एस्पिरेशन लीड्स यू टू कम अंडर दैट पर्सन्स इन्फ्लुएंस। जैसे ही एस्पिरेशन पैदा होगी तुम उसके इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाओगे। अब वो खंग भी मारेगा तो तुम क्या कहोगे? क्या खंग मारेगा, वो ब्लेंडर भी करेगा तुमको वो नजर ही नहीं आएगा, उसका ब्लेंडर भी अच्छा लगेगा, उसकी सब चीजें अच्छी लगेगी, बिकॉज ही इज रीच्ड टू दैट स्टेज ऑफ बिकमिंग एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन।
और ये इसके पीछे प्रोसेस ही होता है, क्योंकि मैं उसका बैकएंड भी बताऊंगा कि ये कॉन्फिडेंस आता कहां से। लेकिन पहले मैं इस फिनोमेना को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात ये कि हर चीज की मौजूदगी को समझने के लिए उसकी गैर मौजूदगी को समझना भी बहुत जरूरी है। लाइट को समझने के लिए डार्कनेस देखना बहुत जरूरी है। अगर तुमने जिंदगी में कभी डार्कनेस ना देखी होती तो तुम लाइट को डिफाइन ना कर पाते। यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? फॉर एग्जाम्पल, अगर सारे लोग दुनिया में अच्छे नहीं करते, आपकी तरह के दिखते, एग्जैक्टली डिक्टो कॉपी, तो क्या आप किसी के सामने जाके ये बता सकते कि मैं कैसा दिखता हूं? क्यों? क्योंकि उसका कोई अल्टरनेट मौजूद ही नहीं है जिसकी बेसिस पे मैं कोई आर्गुमेंट बिल्ड करूं कि मैं ऐसा, क्योंकि होता ही ऐसा है, तो फिर व्हाट डू यू मीन कि मैं कैसा दिखता हूं? यू नो, सो किसी चीज को अच्छी तरह समझने के लिए उसकी एब्सेंस को समझना बहुत जरूरी है। अब इसकी जो कॉन्फिडेंस की एब्सेंस क्या होती है, इसका जो कातिल है, इसका दुश्मन है इनसिक्योरिटी। नर्वसनेस जो है उसका बाय प्रोडक्ट है, वो उसकी वजह से पैदा होता है। ये है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी जब हमारे सामने हो रही होती है, ये फिनोमेना हम जब देख रहे होते हैं तो हम उसको देख के कहते हैं एज एन ऑडियंस, आए हाय। क्या कहते हैं बताएं? आए हाय। कभी नहीं देखा होगा किसी नर्वस बंदे को देख के नहीं कहा होगा हाँ ब्यूटीफुल, यार कितना प्यार, कितना खूबसूरत डरा हुआ लग रहा है। You will never see a nervous person and get inspired from him. उस आए हाय के बाद क्या होगा, आप उससे सिंपथाइज करेंगे, पिटी करेंगे उसके ऊपर, यार बेचारा he's struggling। देखिए कभी प्रेजेंटेशन में कोई फंस जाता है तो लोग क्या करते हैं, कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन, यस 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 यू गुड। फीमेल दोस्त से तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, यू क्वीन। लेकिन उससे क्या हो रहा है, उससे उसकी परसेप्शन क्या क्रिएट हुई है, जैसे ही उससे सिंपैथी या पिटी उस पे हुई, वो बंदा जो है वो बन गया है विक्टिम। The worst thing that you can do to yourself is to portray yourself as a victim. And ये इसमें कई लोगों को बड़ी चस भी आती है। People love being victim, और ऐसे विशेष सर्कल में फंसते हैं, फिर सारी जिंदगी ऐसा कैरेक्टर बने। आपने देखा अपने खानदानों में जो कुछ बड़ी उम्र की औरतें या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको खुश होना ही भूल गया होता है, वो ईद में भी रोना शुरू कर देते हैं। वो उसके बच्चे ने नया घर लेगा, वो रोएगी कि आए हाय होने की फायदा हो ही नहीं रहा। वो किसी जो 10 साल पहले मरा था उसको याद करके रोना शुरू करेगा। कोई भी खुशी का इवेंट आएगा, दे स्टार्ट क्राइंग, हाय हाय इसके पप्पू ही नहीं रहे, अब क्या फायदा शादियों का, ना हम शादियां देखती ना ये। They love being in a state where people pity on them। वो दुखी स्टेटस लगाना शेर व शायरी के, या अपनी वो आईडी लगी है उसको तस्वीर लेके लगाना के pray for me। What is happening behind this? I want people to sympathize with me। I as a human do not deserve pity। That should be the last thing that I should aspire for। कि मेरे पे लोग तरस खाएं, no never। वरना तो फिर you are actually putting yourself in this portrayal of being a victim, where you loving that negative sympathy that people are giving you। वो दे तो देंगे लेकिन तुम्हारा फिर इन्फ्लुएंस नहीं बिल्ड हो सकता ऐसी कम्युनिटी में जहां पे तुम्हें सिंपैथी मिल गई, क्योंकि इन्फ्लुएंस तब बिल्ड होगा जब तुम्हें देख के लोग एस्पायर। यू शुड बी द पर्सन people should look up and they should get inspiration from, instead of you going and telling all your worries and परेशानियां to act victim and look for the sympathies। अपनी परेशानियां सिर्फ ये रात को तन्हाई में आप अल्लाह ताला को बताएं तो बेहतर है। इंसान देखो चस लेंगे, मजा लेंगे, फिर किसी और को ही बताएंगे तो पता है क्या चल रहा है वहां पे, शायद आपके साथ बहुत वो एंजॉय करेंगे, सारी आपकी हाय और क्या हुआ है नहीं, आप भी फिर मजा आता है क्योंकि रिसीवर इतना अच्छा होता है ना, आपने जो नहीं बतानी होती वो भी बता गया। उसके बाद रिग्रेट भी क्या करते हैं, शिट मैन ये नहीं बतानी चाहिए थी, ये आई शुडंट हैव सेड दिस। वो बाद में फिर यू नो, बट इट्स नॉट गुड फॉर योर इमेज एंड फॉर योर पर्सनालिटी टू, बिकॉज यू आर डैमेजिंग योर सेल्फ एस्टीम। अब अगर इससे पीछे जाए और ये पूछें कि ये कॉन्फिडेंस या इनसिक्योरिटी पैदा कहां से होती है, इसकी रूट क्या होता है। इसका रूट हमने अगर कॉन्फिडेंस की जो भी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन पढ़ी तो हमें ये समझ आया कि बिलीफ इसकी जड़ है। बिलीफ से सारी गेम स्टार्ट होती है। बिलीफ से क्या होता है, आपका सेल्फ इमेज क्रिएट होता है दिमाग के अंदर। Whatever you believe about yourself, it creates an identity of you in your mind. Either you think of yourself as a loser or you think of yourself as a winner.
In both of the cases, if you think of yourself as a winner, your whole body language, your persona, your vocal variety, your presence, it will completely be shifted. अगर मैं आप मुझे 1 मिनट किसी के साथ बिठाएं, 1 मिनट की गप के बाद I can tell whether this person thinks of himself as a loser or a winner. Is he a confident? Because ये चीखें मारी होती है तुम्हारी बॉडी को, चीखें मार के बता रही होती है कि I am insecure या I am very comfortable and confident. It is so loud, you cannot hide it. It will come out. You know, you can't hide. जितना मर्जी ऊपर आप लिपाते, इसलिए मैं इसमें इतना टाइम लगा रहा हूँ. आप सोच रहे होंगे कि कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग में why I'm focusing so much on this, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर आएगा. अंदर फूक है तो बाहर फूक ही निकलेगी. ऐसे करें सारे. Imagine you have a balloon filled with air. Balloon filled with air. आप भी दोबारा भर ले सकते. If I have a pin and I burst this. अब क्या होगा? अंदर से क्या निकलेगा? जूस हो गया. अंदर से क्या निकलेगा? हवा. मिल्क शेक? हवा. पानी? जूस? क्या निकलेगा? चॉकलेट? कैसा स्टूपिड सवाल है. हवा ही निकलेगी. बस्ट हो गया सर. अंदर से हवा ही निकलेगी. क्यों? क्योंकि अंदर हवा ही है. तो अंदर अगर इनसिक्योरिटी में जितना मर्जी तुमको निटी ग्रिटी बता दो नॉन वर्बल की या वोकल वैरायटी की, अंदर इनसिक्योरिटी है तो बाहर इनसिक्योरिटी ही निकलेगी. अंदर कॉन्फिडेंस है तो बाहर कॉन्फिडेंस ही निकलेगा. वो शायद थोड़ा टाइम लगा के थोड़ा सा आपको कोई प्रेशर करे तो वो ट्रूस करके बाहर निकलेगा. योर ट्रू सेल्फ. अब सवाल ये कि हमने कहा कि बिलीफ आपकी सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं. हम उसको लिखते हैं सेल्फ इमेज. जो आपकी सेल्फ इमेज होती है वो या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी. पॉजिटिव है तो वो कॉन्फिडेंस उसका बाय प्रोडक्ट है. अगर नेगेटिव है तो इनसिक्योरिटी उसका बाय प्रोडक्ट. और इनसिक्योरिटी बहुत इट्स अ पुअर स्टेज टू लिव योर लाइफ है. मैं इसका चले आपको एक वो झूठी या खुद से स्टोरी बना के बताता हूँ इनसिक्योरिटी समझने के लिए. लेट्स सपोज मेरा यूनिवर्सिटी का कोई दोस्त है, उसकी कल बर्थडे पार्टी. उसने मुझे आज फोन किया, नुमान 10 साल के बाद मुझे कॉल किया. बात नहीं होती रहती है लेकिन 10 साल के बाद हमारी कोई गेट टुगेदर होने लगी यूनिवर्सिटी. उसने मुझे कॉल किया, नुमान बड़ा फिट सीन है, मैंने एक रियूनियन रखी है, मेरी बर्थडे भी है तो मैंने सारों को बुलाया तो तूने लाजमी आना. 3:30 बजे हम कर रहे हैं, हम तुम तेरा वेट करेंगे एंड यू शुड कम. मैंने भी बड़ा एक्साइटेड, मैंने कहा गुड है, आई विल डेफिनेटली कम. मेरे घर से उसके घर का डिस्टेंस लेट्स सपोज 30 मिनट्स की ड्राइव. कल मैंने सोचा हुआ था कि मैं 3 बजे ऑफिस से डायरेक्ट घर जाऊंगा, तैयार होने के बाद मैं 3 बजे निकल जाऊंगा, 3:30 वहां पे पहुंचूंगा. मैं घर पहुंचा, मैं कहीं लेट हो गया, 3:30 बजे मैं घर पहुंचा. मैंने अपनी जल्दी में फेवरेट शर्ट प्रेस की, पैंट प्रेस की, जूते पहने, तैयार शेयर हुआ क्योंकि वहां पे थोड़ा स्वैग भी दिखाना है, सारे पुराने आए होंगे. तो गाड़ी में मैंने सेल्फ मारा, ऑलरेडी मैं लेट हूँ, अब 3:45 हो चुके हैं. तो उसे कॉल किया, यार किधर हो तुम, तुम्हारा कब से सारे आ गए, यू आर नॉट हियर, वी आर वेटिंग फॉर यू, तेरा वेट करें तो आएगा तो केक काटेंगे. मैंने कहा मैं आ रहा हूँ बस, आई एम ऑन माई वे, इट विल टेक मी 30 मिनट्स, प्लीज वेट फॉर मी. आई एम ऑन माई वे, 15 मिनट्स ड्राइव मैं कर चुका हूँ. देन आई रियलाइज्ड कि मेरी जो शर्ट है वो यहाँ से फटी हुई. अब मैं ये सोच रहा हूँ, शुड आई गो बैक एंड चेंज माई शर्ट और शुड आई गो. आई वाज इन द मोमेंट ऑफ फाइटिंग बिटवीन दीज टू थॉट्स कि मुझे उसकी कॉल आ जाती है, कहती किधर हो यार, वेट करें तुम्हारा कब से. अब अचानक से दोबारा उसकी कॉल आई, मैंने सोचा यार लेट्स गो, आई मेक श्योर दैट नोबडी सीज इट. मैं मेक श्योर करूंगा वो देखे नहीं और किसी तरह मैं टाइम गुजार के आ जाऊं. अब नुमान साहब वहां पे गए, एंटर हुए, सारे पुराने दोस्त, शुपल मेला लग रहा है, तालियां मार रहे हैं, कोई किसी कुत्ती कर रहा है, वो पुरानी कहानियां सुना रहे हैं, तू ऐसा होता था याद है. अब एवरीबडी इज हैविंग द फन ऑफ देयर लाइव्स. हियर आई एम थिंकिंग अबाउट दैट लिटिल पार्ट ऑफ माय शर्ट कि कोई देखना. मैं तो खुल के ताली, मैं हंस भी नहीं रहा कि कोई किसी की नजर पड़ जाएगी और कोई देख लेगा. I am so much focused on that little part of my shirt that I'm not enjoying any second of that party. मैं दुआ कर रहा हूँ किसी तरह से, हालांकि कल तक मैं वेट कर रहा था कि कब वो आए और मैं enjoy करूँ. But I'm waiting for it to end now. I went back to my home. While I was driving back, I thought that life is also like that birthday party. और हम कभी-कभी हमारी छोटी-छोटी insecurities होती हैं. और वो हमने इतना मैग्नीफाई किया हुआ होता है उन insecurities को कि we never come out of our shells and shine the brightest which we could as a human. तो insecurity सबकी होती हैं. सबसे ज्यादा insecurity आपको अपने जिस्म से लेके होगी, अपनी बॉडी से लेके होगी. सबसे बड़ी जो ह्यूमन की insecurity होती है, और भी ढेर सारी होती है. मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मेरी आवाज ऐसी है,
वैसे तो आप सारे अच्छे इदारों से हैं, कई लोगों को ये भी होती है मैं कि बहुत अच्छे इदारे से नहीं पढ़ा हुआ, मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, या देयर आर लॉट्स ऑफ इनसिक्योरिटीज व्हिच ह्यूमंस हैव। अगर और सबसे बड़ी होती है आपकी बॉडी को लेके, क्योंकि अभी इतना ज्यादा ये हमने ब्यूटी को कमर्शलाइज कर दिया हुआ है कि उसके इतने स्टैंडर्ड्स बन चुके हुए हैं कि हमें लगता है कि हमने फिट इन होना उसके अंदर। ये कोरियन स्किन केयर करने से बेहतर है कि सेल्फ लव थोड़ा सा हम करना शुरू कर दें, और सेल्फ लव के अंदर एक्सेप्ट whatever body is given to you. That's the only thing that you can do. Now the wisdom behind your creation, the body that you've been given with, is the same wisdom that is behind the creation of whole universe. तुम सिर्फ पत्ते को लो ना, एक पत्ते को, और उसको स्टडी कर, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ये क्या चक्कर है कि कौन सी मोटर लगी हुई है? कभी देखे पानी ऑपोजिट जाए ग्रेविटी के? नहीं आता। कितनी मोटरें लगानी पड़ती हैं उसको ग्रेविटी के ऑपोजिट मूव कराने के लिए। दरख्त वो कितने फीट के ऊपर एक पत्ते तक नीचे से पता नहीं केड़ी मोटर लगी हुई है जो पानी निकाल के ऊपर तक लेके जाती है, फिर अंदर एक और फैक्ट्री लगी हुई है जो फोटोसिंथेसिस करती है, फिर साथ एक प्रोडक्शन प्लांट लगा हुआ है जो प्रोड्यूस करता है फ्रूट, उस फ्रूट के अंदर पता नहीं केड़े केड़े मिनरल्स हैं जो नीचे से फिल्टर होकर सॉइल के अंदर से ऊपर तक आए। मिरेकल्स। इवन एक प्लैनेट अर्थ को तुम देखो तो प्लैनेट अभी जहां पे हम फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉल सस्पेंडेड इन दी स्पेस, ऐसे भी घूम रहा है, ऐसे भी घूम रहा है, बहुत बड़े से जायंट फायर बॉल के इर्द-गिर्द, यहाँ पे भी हम सारे बैठे हैं, इसके बिल्कुल यहाँ पे 90 डिग्रीज पे एक और उल्टा बंदा भी बैठा है खड़ा। We are all attached to it like a magnet. Isn't it crazy? The wisdom behind this whole miraculous world is the same wisdom which is behind your creation. और मैं समझता हूँ मैं बहुत सियाना हूँ, मुझे लगता है मेरी नाक थोड़ी सी पतली होती तो क्या ही बात, मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, मेरा कद थोड़ा छोटा रह गया। Imagine how sad he would be. The creator would be looking at you. I've created you beautifully. This is how you were supposed to be created. Yeah. So I should accept however I look. Agar if you can change something about it, do it. But if you can't, then live with it and accept however you look. Because अगर ये insecurity है ना, फिर तो कभी भी confidently आप spotlight को या लोगों के सामने खड़े होकर communicate नहीं कर सकते। फिर ये आप छुपाते ही रहेंगे। You know? तो सबसे पहले ये बिलीव के बाद सेल्फ इमेज है। सेल्फ इमेज से ये दोनों चीजें क्रिएट होती हैं, या तो कॉन्फिडेंस या तो इनसिक्योरिटी। अच्छा, अब सेल्फ इमेज के अंदर कभी कभी आप ये भी सोच सकते हैं कि यार मेरे पास कोई इतनी ज्यादा पोर्टफोलियो के अंदर अचीवमेंट्स नहीं है जो मैं अपनी तगड़ी सी आइडेंटिटी बनाऊं कि मैंने ये भी किया, ये भी मैंने तो कुछ अभी किया ही नहीं है। उसका हल ये होता है कि आप सेल्फ इमेज अपने फ्यूचर जो भी आपके ड्रीम्स हैं, दे शुड बी ह्यूमंगस, अनबिलीवेबल। वो जो ड्रीम्स है मेरे, उनसे मैं अपनी सेल्फ इमेज बोरो करूं इस टाइम में। मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत एग्जांपल्स देता हूं। बिलीफ इतनी पावरफुल चीज है सर, इतनी बिलीफ के ऊपर रिलीजन ने इतनी बात की और साइंस ने इतनी बात की है। साइंस, अगर आप प्लेसिबो इफेक्ट, कितने लोगों को पता है प्लेसिबो क्या है? प्लेसिबो क्रेजी कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे अगर क्वांटम फिजिक्स को आप अंडरस्टैंड करें, यू विल आल्सो गो क्रेजी। अगर ये बात समझनी है तो द सीक्रेट किताब एक पढ़ लीजिएगा, द सीक्रेट। अगर किताबें पढ़ने का नहीं शौक तो द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री या मूवी भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होगी, वो देख लीजिएगा। इसको अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव में देखें तो अल्लाह ताला हदीस कुदसी में कहते हैं कि जैसा मुझसे गुमान करोगे वैसा तुमसे मामला करूंगा। However you believe will become your reality. हज़रत इब्राहिम की सारी स्टोरी प्लेसिबो पे है कि जब उन्होंने नमरूद के अगेंस्ट बगावत की, उस टाइम का वो बादशाह था, नमरूद ने बहुत बड़ी आग तैयार की, उसके स्ट्रक्चर तैयार किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहां पे खड़ा किया गया कि जंप इनटू द फायर, and Ibrahim अलैहिस्सलाम standing up there looking down into the fire and he was smiling because he just met God थोड़ी देर पहले। And imagine the belief was so strong that he was sure that this fire who is supposed to burn human flesh will not burn me because it is not the fire who burns, it is God who burns. He jumped into the fire and the fire that is supposed to burn human flesh was नहीं burn किया। और इसको मैं इकबाल के शेर भी सुनाता था इस मौके पे कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। इश्क यहाँ पे बिलीफ है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अक्ल है महवे तमाशा लबे बामी कि अक्ल is still astonished, human intellect is still astonished that how is it possible, but it is very much possible. Science backs it, और इसके ऊपर स्टडीज हैं, बल्कि हार्वर्ड ने भी एक स्टडी की थी जिसमें वो सांप वाली स्टोरी आप में से बेशतर लोगों को पता होगी, नहीं पता तो जरूर पता कीजिएगा। But have a very good belief about yourself, about your country, about your abilities. If you can do something, then do something about it. Otherwise, if you can't do something, don't be that person who sits and whine about things. कूड़ना नहीं है कभी बैठना। मोलो के लाद कुछ नहीं है यहाँ पे, खत्म हो गया, तबाह हो गया। You should be the last person. And somebody sitting with you and whining, just दिमाग कान बंद कर लेगा उसके होते।
क्योंकि मैं अब दोबारा आपको बता रहा हूँ, whatever your belief will be, it will become your reality. अगर कोई ये कह रहा है ना life is beautiful और एक बंदा कह रहा है कि life is hell, who is right? Both are right, because both believe in a certain way and it becomes their reality. उनकी reality उसके बाद वाकई जन्नत और इसके लिए वाकई जन्नत से कम. So belief does wonders. So moving on to non-verbal communication. Non-verbal communication के अंदर 77% of your communication it depends on non-verbal. Non-verbal में क्या क्या चीजें आती हैं quickly बताएं? Body language, gestures, what else? Expressions, facial Your clothes, your Expressions, your clothes, your dressing, what else? Posture, Your posture, movement, 77% of communication is non-verbal. facial expression. Content is 7% facial expressions. Content is 7% and rest is vocal variety. 77% and last thing we talk about is non-verbal. एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी जो शुरू में मुझे लगा कि this is bullshit. कि 3 सेकंड के अंदर एक इंटरव्यूअर डिसाइड कर लेता है whether I want to select this person or not select this person. फिर मैंने अभी अपने कैरियर में I've done thousands of interviews for different companies और मैं इस बात पे 100% यकीन रखता हूँ कि ऐसे ही होता है. आप ये बताएं अपने दिमाग से कि फिर बाकी के इंटरव्यू में क्या हो रहा होगा? अगर 3 सेकंड में डिसीजन हो गया तो ये बाकी के इंटरव्यू में क्या हो रहा होगा? They are making sure, all right. What else? उसकी इतने जनरस हमारे लोगों ने तो क्या है? तो इसकी फीलिंग्स ना हर्ट रहा. कितने टाइम है आप? आपको HR बनना चाहिए. आप HR नहीं हैं? कोई सीरियस किसी चीज में नहीं सोसाइटी. अच्छा सोसाइटी में. so they are finding a logical reason to reject or accept it. If they were so logical and rational, why would they make a decision in 3 bloody seconds? So they would have to present a debrief to someone else that why am I selecting or rejecting this guy. Alright. Study says that they justify their decision. Justify. Loves क्या है? Justify. They're not checking whether I was right or wrong. They'll justify that I was right. And they'll dig for the data as he mentioned to justify their argument in front of the management and other people. But before that, they justify themselves. और वो for example मैंने सोच लिया मैं तुम्हें नहीं रखना तो I'll make sure that I give you the worst time of your life in that interview कि you justify me right कि मैंने सही है फर्क है ऐसे ही सोचा था और अगर मैंने सोच ही तुमको रखना तो मैं तुमसे पूछूंगा कहाँ से हो हॉबीज क्या है and you know I give you the sweetest of time to make sure that मैंने सही सोचा था कि इसको और अक्सर मैं आपको शुगल की बात बताऊँ पैनल जब बैठा होता है ये बात मैंने बड़ी ऑब्जर्व की कि पैनल में अक्सर इंटरव्यूअर्स आपस में एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि ये राइट को फाइट कर रहे होते हैं कैंडिडेट के लिए मतलब अब मेरे साथ अगर एक पैनल में बंदा बैठा कोई इंटरव्यू आ गया तो ही विल स्टार्ट सेलिंग दैट कैंडिडेट टू मी subliminally not very obviously लेकिन वो मुझको सेल कर रहा होगा कि हाँ ये चीज देखे we are looking for that ये इसमें ये चीज है yes these values go very much with our values you know you're absolutely right so they are kind of selling each other to each other और दूसरों को भी justify कर रहे होते हैं कि we want this person क्योंकि we are human we are very much emotional beings 3 सेकंड के अंदर ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन उसके पास आती है जिसकी बेसिस पे वो फैसला करता है Non-verbal. प्योरली नॉन-वर्बल. अभी बेचारे उसने अपना मुंह भी नहीं खोला शायद ग्रीटिंग्स की होंगी हेलो हाय की होगी यू नो सिर्फ ग्रीटिंग्स की होंगी अब नॉन वर्बल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं नॉन वर्बल में सबसे पहली जो चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है वो करनी है फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी किसको पता है क्या होती है ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन करती है इस स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजी इसके अंदर एक रिलेशनशिप पढ़ा जाता है ह्यूमन बॉडी और इमोशंस का कि कैसे ह्यूमन बॉडी और इमोशंस आपस में कोरिलेटेड है आप जब खुश होते हैं कभी देखा है किसी को सेलिब्रेट करते हैं उसकी बॉडी ओपन होती है या क्लोज होती है ओपन होती है they want to celebrate they want to jump they want to open their arms they want to take more space this is the natural response to the feeling of happiness एक्चुअली में जब हैप्पीनेस होती है तो अंदर हार्मोनल सिक्रीशन होती है जिसको डोपामिन बोलते हैं और फिर डिप्रेशन के अलग हार्मोन्स होते हैं और ग्रीफ के अलग हार्मोन्स होते हैं डिफरेंट हार्मोनल सिक्रीशन होती है बॉडी के अंदर जिससे बॉडी एक सर्टेन शेप में आ जाती है डिप्रेस बंदा थोड़ा सा उसकी लाउजी बॉडी लैंग्वेज होगी इन थिंग्स लाइक दैट लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका रिवर्स रिलेशन भी होता है व्हाट डज दिस मीन
जो आप बॉडी लैंग्वेज करेंगे वो इंड्यूस हो जाएगा। कि आप अगर बॉडी ऐसी अपना लें जो कि एक खुश इंसान की बॉडी लैंग्वेज होती है, तो यू कैन ट्रिक योर ब्रेन टू फील हैप्पी एंड secrete dopamine. दिस एक्चुअली हैपेंस. बल्कि रिलीजन सेज कि जब गुस्सा आए तो खड़े हो, बैठ जाओ, लेट जाओ. अब क्या हो रहा है? गुस्सा इमोशनल स्टेट है, वो आपके उठने बैठने, चेंज ऑफ योर फिजिकल स्टेट से इट कैन आल्सो चेंज. तो फिजियोलॉजी ये कहती है अगर मैं नर्वस हूं और मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान की बॉडी लैंग्वेज अपना लूं, तो इससे क्या होगा कि मैं कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं फील भी करना शुरू कर दूं, मेरे नर्व्स थोड़े से कंट्रोल में आने. और नॉन वर्बली जो कम्युनिकेट करोगे वही कम्युनिकेट होगा, उसके अलावा किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता लग सकता. अभी तक की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता फ्यूचर का. अभी तक कोई ऐसी डिवाइस ईजाद नहीं हुई जो तुमको लगाओ और पता लग जाए कि तुम्हारे अंदर इमोशनल स्टेट क्या है, कि तुम अंदर से फुल एंग्जियस हो. मुझे नहीं पता लगेगा अनटिल और अनलेस तुम नॉन वर्बली मुझे कम्युनिकेट करो. अगर यहाँ पे आगे फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग पढ़ाता है, उसमें कहते हैं वर्स्ट फियर क्या होता है कि व्हाट इफ आई गो इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड आई फॉरगेट, मैं भूल गया तो क्या होगा. मैं ये कहता हूँ कि देखो किसी को भी नहीं पता तुम्हारी स्क्रिप्ट क्या है, किसी को भी नहीं पता तुम्हारे एक जुमले के बाद कौन सा जुमला आना. ये सिर्फ तुमको पता होगा स्टेज पे कि तुम भूल गए. नाउ हाउ यू हैंडल इट नॉन वर्बली, that matters. For example, I come in front of you and say, "Assalamu alaikum everyone. So today I'll be speaking on human resource and so when I do such kind of gestures, I'm giving you a clear message that kuch gadbad ho gaya. There's something wrong. But for example, I came in front of you and I actually forgot. तो मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हो गया, अस्सलाम वालेकुम. So today I'm going to talk about human resource. But before I talk about it, I would like you all to share your thoughts. What do you think about human resource and how it is important in our lives? Please. आपको ये बोलेगा, फिर वो बोलेगा. अब मुझे अंदर से पता है कि I actually forgot my script. Now, meanwhile, what I'm thinking is कि मैंने आगे अब कैसे बोलना है, कैसे build करनी है अपनी सारी बात. Because in audience nobody knows. That interviewer does not know कि तुम्हारे अंदर की state क्या है. और जो तुम नॉन वर्बली उस तक कम्युनिकेट करोगे वो वही पहुंचेगा. उसी की बेस पे वो 15-20 मिनट के अंदर वो अपना फाइनल कोई ना कोई खुलासा लेके आता है या आपके बारे में क्रिएट करता है. उसमें जो सबसे मेन या फंडामेंटल चीज होती है वो होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज. एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के अंदर दो चीजें होती हैं. हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत डिटेल में जाएं, तो मैं आपको सिंपल दो चीजें बताऊंगा. दो लेटर्स अपने पास लिख लीजिएगा और इसी से याद रखिएगा, बी और एस. बी एंड एस. B से है बैलेंस और S से है स्पेस. बैलेंस एंड स्पेस. First of all, balance. A confident body language is always balanced. You will not see any unnecessary movement in a confident body language. Unnecessary movement क्या होती है? जो nervousness होती है ना, उसके अंदर कुछ खुरक लगी होती है, उसके अंदर एक आग होती है, तशनगी होती है, बेचैनी होती है. तो वो चाह रहा होता है किसी तरीके से मैं बेचैनी को निकालूं. So he'll do all those things to communicate that मैं थोड़ा सा बेचैन. वो unnecessary movement भी होगी उसके अंदर. He or she is all over the place. Imbalance. On the other hand, confidence is very balanced. उसको कोई unnecessary movement, कोई fidgeting नहीं है. ये बैठ गए, टांग जो है वो वाइब्रेशन पे लगाना, प्योर साइन ऑफ एंशियसनेस. किसी इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल सेटिंग में अगर बैठ गया और लगे हुए हैं तो it's absolutely bad. You're playing with your beard, men especially, or your mustache. Oh my God, never do that. You look very absolutely ugly when you do that. When you play with your mustache. For females, playing with your hair in professional environment. When you're nervous, you do all these things. You're flipping your hair. It is a crime to flip your hair. Make sure that they are settled in a way that you don't need any flips. और आजकल तो लड़के भी करते हैं. तो make sure you don't flip your hair. You play with your face. You touch your face. You do anything that does not have any meaning. That is not purposeful. So there has to be utter balance in your body language. Second thing is space. Space का क्या चक्कर है जी? Space builds authority and influence. The more space you take, the more authoritative and influential you look. जैसे आपने देखा होगा कि जब दो लड़के या लड़कियां whatever रोड पे देखा, अगर दो लड़के लड़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, लड़के देखे ओए तू
They open themselves up, take more space in order to tell the other person I'm more. बेशक skinny सभी हो, वो chest up, chin back, shoulders back कर लेगा फौरन से to take more space in order to tell the other person I'm very powerful. You will never see a person जो कि लड़ने के लिए आया होगा, बताऊँ तुम्हें? He'll never close himself. He'll always take more space. कुकड़ों को लड़ते हुए देखे? मुर्गों को take more space. किसी भी जानवर को लड़ते हुए अगर तुम देखो, लड़ाई में क्या होता है? अथॉरिटी दिखानी होती है ना, I'm more powerful, I'm more powerful. They take more space in order to exert that authority. In communication, you have to moderate रहते हुए, वहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते obviously. Moderate खूबसूरत लगते हुए, you have to take more space. Space दो तरह की होती है, एक होती है vertical, एक होती है horizontal. I want all of you to stand up. Now vertical की बात करते हैं सबसे पहले. Stand at the fullest of your height. पहली बात है दोनों टांगों पे खड़ा है. एक टांग पे खड़े होने से ऑटोमेटिकली यू श्रिंक योरसेल्फ हाफ एन इंच. अब ऐसे करने के बाद सामने खड़े होकर जितनी भी इंपॉर्टेंट बात करूं तुम कभी मुझे सीरियस नहीं लो, ठीक है? अगर मैं ऐसे करके तुमसे खड़ा होकर बातें करूं, मैं शिफ्ट करूं अपना बैलेंस एक से दूसरी, तो आई इंस्टेंटली डिलूट माय इन्फ्लुएंस ऑल अथॉरिटी. तो फर्स्ट स्टैंड ऑन योर बोथ फीट. इससे क्या होता है? यू स्टैंड एट मैक्सिमम ऑफ योर हाइट. दूसरी बात है कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है ऊपर से कहां से स्टार्ट होता है? कैन यू टच इट फॉर मी? अच्छा, गर्दन से नहीं होता, सर के. दिस इज वेयर योर स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट्स नाउ. सर का जो मिडल है, जो बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है, इट शुड बी इन लाइन विद योर हील्स. इन लाइन विद योर हील्स. ऑटोमेटिकली यू आर स्टैंडिंग एट द, ऐसे नहीं करना है, इन लाइन विद योर हील्स सो दैट यू आर स्टैंडिंग एट द मैक्सिमम ऑफ योर हाइट. दूसरी बात आती है हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल के अंदर when I do this, am I taking more space or less space? Less. More or less? More or less? Less. Now सवाल ये है कि what do I do with my hands? Straight down. Straight down. Alright. The best thing, फिर तो मैं इनको यूज करके क्या करूंगा? वापस इनको फेंकूंगा इधर, फिर यूज करूंगा, फिर I'll throw them here. So इसके लिए there is an anchor position या anchor place. Anchor वो जगह होती है जहाँ पे ships रेस्ट करने के लिए एंकर को ड्रॉप करते हैं. तो हाथों को रेस्ट करने के लिए in front of your belly button is the place where you rest your hands. You should not be hugging yourself. It should not be touching your body क्योंकि you look very ugly when you do this. ठीक है? तो let a little air pass through your armpits. Air, not wind. let a little air pass through your armpits and do not hug yourself. थोड़ा सा दूर you place your hands. However you feel comfortable, you can do with your hands. Whatever you feel comfortable. अगर इनको फंसाएंगे थोड़ा सा फिर मुश्किल होगी क्योंकि इनको फिर निकालेंगे, फिर निकालेंगे. तो make sure इनको टैंगल नहीं करना आपस में, इनको आजाद रहना. तो हाथों का इस्तेमाल जो है यहीं पे in front of belly button से थोड़ा सा ऊपर is the place where you use your hands. You bring them back here. You use your hand, you bring them back here. Apple की जितनी भी Apple अपने लॉन्चेस में, क्योंकि स्टीव जॉब वाज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, उसने पूरा लैंडस्केप चेंज किया था प्रोडक्ट लॉन्च का. अभी भी एप्पल की जितनी मर्जी लॉन्चेस देख लो, आई चैलेंज यू, जितनी लॉन्चेस देख लो, जो बंदा भी आके लॉन्च कर रहा होता है उसकी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करना. They do customized consultation before launching a person for a launch. तो उसमें every powerful leader you will see they use this trick. ठीक है? They use their hands, they bring them back to the anchor position. Bring them back to the anchor position. That's how you are taking more space horizontally too and vertically too. You look more beautiful when you do that. Sit down. Thank you very much. अब मैं तुम्हारे सामने आके अगर ऐसे करके बात करना शुरू करूँ, अब अगेन मैं जितनी मैं इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद उस बात का असर या इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. या मैं इनको जेबों में फंसा लूँ या मैं खुद को जबकि डाल लूँ, थोड़ी देर तक तो मेरी बात सुन सकते हो, उससे ज्यादा मैं क्लियरली कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. मैं बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा हूँ अपने और आपके तरफ, ये तो बिल्कुल नोन है. सो दिस इज द प्लेस वेयर यू यूज योर हैंड्स. सो बी और एस को याद रखना है. उसके बाद हैंड जेस्चर्स. हैंड सबसे खूबसूरत टूल अल्लाह ताला ने तुम्हें दिए हैं, वो तुम्हारे हाथ हैं. तो खुदा रहा इनको यहाँ ना फंसाओ, यहाँ ना छुपाओ, इधर मत घुसाओ. You learn how to use your hands. Mirror is your best audience. Stand in front of a mirror and do all these things. This is the perfect time for you to learn this. Put and invest some time into it so that you learn how to use best of your hands. शुरू में it will feel that it is not coming naturally to me. Nothing is natural. Over time, when you do something over and over and over again, it becomes your muscle memory, and then it comes it starts to come from your subconscious. फिर तुम consciously नहीं कर रहे होते, subconsciously वो हो रहा होता है. कोई भी स्किल जब आप सीखते हो, शुरू में एक स्किल सीखने के ना 4 स्टेजेस होते हैं. मैं इसमें जल्दी से क्विकली बात कर लेता हूँ. सबसे पहली स्टेज अंग्रेजी में नहीं उर्दू में समझाता हूँ, जरा आसान होगा.
सबसे पहली स्टेज होती है गफलत की, जहां पे इंसान को पता ही नहीं कि उसे नहीं पता, जिसको अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं. आई डोंट नो दैट आई डोंट नो. सबसे सुकून वाला माहौल होता है, चिल, रिलैक्स. कहते हैं ना, एक फलसफा भी है कि स्टुपिडिटी इज अ ब्लिस, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस. फॉरेस्ट गंप बन जाओ. किसकी है? फॉरेस्ट गंप बन जाओ. या सो इग्नोरेंस इज द ब्लिस. तो स्टूपिड और चिल मोड, तुम्हें पता ही नहीं है, परवाह ही नहीं है, तुम्हें सारे बाकी पागल हैं, सारे पागल हैं. तो सबसे पहली स्टेज होती है कि अनकॉन्शियस इनकॉन्फिडेंस. फिर आती है दूसरी स्टेज बेदारी, कॉन्शियस इनकॉन्फिडेंस. उसमें ये होता है कि नाउ यू रियलाइज माय गॉड आई नीड टू लर्न दिस. प्रोबब्ली आज ये शायद किसी के साथ हुआ कि you got conscious about an incompetence. I need to fill in this gap. I need to, there is this room of improvement in my personality that I need to fill in. इसके बाद स्टेज आती है जो सबसे मुश्किल स्टेज होती है, जिसको बोलते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस. उर्दू में अगर तर्जुमा करूं तो अनाड़ी वाली स्टेज. ये ऐसी स्टेज है जब तुमको पता लग गया है कि मैंने इसके बारे में कुछ करना है और तुम नया नया करना शुरू करते हो. गाड़ी आप में से काफी कितने लोगों को चलाना आती है? रेज योर हैंड. हाँ, तकरीबन 85 to 90% बात है. मैं गाड़ी का एग्जांपल देता हूँ. गाड़ी आपको शुरू में उस्ताद ने सिखाई होगी, ठीक है, साथ बैठा होगा, मैनुअल सीख किया तो उसने बताया होगा ये एक्सीलरेशन है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, क्लच दबाना है, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, ये शीशा है, ये वाला शीशा है, ये वाला शीशा है, तो ये इशारा लगाते हैं, ये सो मच इन्फॉर्मेशन. पहले तो तुमसे वो बैलेंस ही नहीं होता, छड़ा करके गाड़ी बंद हो. अगर उस्ताद सख्त हो तो रख के गिच्ची में लगाता है, उल्लू तो समझ ही नहीं आ रही, बार बार गाड़ी बंद हो रही. तो आप 1 महीना 2 महीने तो गाड़ी जब हल्की फुल्की चलाना सीख भी जाते हैं तो यू आर यूजिंग ऑल योर कॉन्शियस फैकल्टी ऑफ द ब्रेन टू ड्राइव. तुम ना मोबाइल को हाथ लगाओगे, ना गाने सुनोगे, बिल्कुल रोड पे हो. यू नो, इशारा भी टाइम से लगाना है, इधर भी मुड़ के देखना है, इधर भी देखना है, अक्सर देखना भूल जाओगे, इशारा लगाना भूल जाओगे. यू आर ऑल यू यूजिंग योर कॉन्शियस फैकल्टी बिकॉज यू आर कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट. Consciously, you know how to drive, but it takes a lot of consciousness to do that. Then comes a time when you do it over and over again. अब तुमने कौन के साथ फोन लगाया हुआ है, पैकेज लगाया हुआ है, गप्पे भी मार रहे हो, किसी से लड़ाई कर रहे हो, खुद ब खुद ब्रेक लग रही है, खुद ब खुद गियर चेंज हो रहा है, खुद ब खुद गाड़ी चल रही है. इतनी कैलकुलेशंस तुम कर रहे हो, तुम्हें खुद नहीं अंदाजा. There are so many calculations that a driver does. अगर बाइक पे हो तो फिर तो और कैलकुलेशन है, बैलेंस भी साथ मेंटेन करना है, इन दोनों के दरमियान इतना डिस्टेंस है, निकल जाऊंगा नहीं निकलूंगा, निकल गया, फिर ये इतनी स्पीड है, मैं इतनी स्पीड पे हूं, मैंने इसको कैसे ओवरटेक करना. सो देयर आर लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस दैट हैपन, बट व्हेन यू डू इट ओवर एंड ओवर अगेन द फोर्थ स्टेज कम्स व्हिच इज कॉल्ड अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, व्हिच इज उर्दू में खिलाड़ी वाली स्टेज है. तो अभी अगर आप करना शुरू करोगे तो एवरीथिंग फील्स वेरी अननेचुरल. ब्रेन बहुत लेजी ऑर्गन है, वो कहता है कि नई चीज नहीं, प्लीज नो नो. खासतौर पर जब एडल्ट हो जाओ ना तो फिर तुम्हारा लर्निंग कर वैसे ही डाउनवर्ड होता है. तो कोई भी नई चीज को फीड करोगे ये प्लीज नो, लेट्स गो बैक टू आवर प्रीवियस जो भी हमारी हुई है प्रोग्राम है, नई चीज नहीं बतानी. फिर तुम कोई ना कोई बहाना खुद को बता के वापस आ जाओगे. इट्स नॉट माय थिंग, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट बाय नेचर, आई एम वेरी शाय. दिस इज ऑल बुलशिट. डोंट एवर टेल योरसेल्फ दैट आई एम इंट्रोवर्ट. नो, ये एक पर्सनालिटी टाइप जरूर बनी है अंडरस्टैंड करने के लिए इंसानों को, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने सारी जिंदगी खोल में अपने आप को बंद कर दिया. ये कैरी ड्वेक की किताब है माइंडसेट, जो मैंने शुरू में बताया, आपको नहीं बताया. माइंडसेट के नाम से एक किताब है, कैरी ड्वेक, CROYDWECK. अगर किताब पढ़ने का शौक नहीं है तो इसकी टेड टॉक देख लेना, उसके अंदर इसने 15 मिनट के अंदर पूरी किताब का खुलासा किया. इसने रिसर्च की थी जिसमें इसने माइंडसेट के बारे में बताया था. कभी भी खुद को कोई टाइटल नहीं देना कि मैं ये हूं, मैं ये हूं. यू कैन बिकम एनीबॉडी, यू कैन बिकम द मोस्ट एक्सट्रोवर्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट इफ यू वांट टू, इफ यू रियली वांट टू. बट अगर तुमने एक होल बना लिया, डिफाइन कर लिया, पता है क्या होता है, ब्रेन इतनी खबीस चीज है. अगर ये कोई बात मान ले तो फिर ये पूरे तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है. ब्रेन इनका वो है सिपहसालार, ठीक है. ये कहता है, अगर तुमने कहते ना इंट्रोवर्ट, ब्रेन ने कहा कि गाइस वी आर इंट्रोवर्ट, सो मेक श्योर यू एक्ट अकॉर्डिंगली. अब कोई भी ऐसी सिचुएशन आई जो एक्चुअल में एक्सट्रोवर्ट वाली सिचुएशन है, ये सारे चीखें मारेंगे, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, नो वी आर इंट्रोवर्ट. अब रात को नींद नहीं आ रही, आपका ब्रेन कहेगा मुझे नींद नहीं आ रही. अब रात को जब सोने लगोगे ये ट्रिलियंस सब चीखें मारेंगे, गाइस डोंट स्लीप, हमें नींद नहीं आ रही, मेक श्योर हमें नींद ना आए. कोई कहता है मुझे नाम नहीं याद होते, ये सुना है ना, मुझे नाम नहीं याद होते लोगों के. अब कोई बंदा उसको जैसे ही नाम बताने लगता है ना, ये सारे सेल्स सुन हो जाते हैं, नहीं सुनना नहीं याद नहीं, हमें नाम नहीं याद होता. बिकॉज ब्रेन इज द वन हू कंट्रोल्स इट. इफ यू टेल योरसेल्फ मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं शाय हूं, ये अगर बकवास में खुद को बताऊंगा तो फिर आई विल एक्ट अकॉर्डिंगली, इट विल बिकम माय रियलिटी. और मैं उसी तरह जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी माइंडसेट वाली एक्टिविटी के साथ, कि जैसा माइंडसेट होता है वैसे ही आउटकम होती है.
कंपोजिंग काम के ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ. यू शुड हैव कंपोजर. नर्वसनेस इज ऑल ओवर द प्लेस. को लग रहा होता है टाइम बहुत जल्दी से गुजरेगा, वो चीजें भी गिराता है, पानी भी गिरा देगा, टक्कर भी मारेगा, हमेशा उससे कोई गड़बड़ हो जाती है, you know, because he or she is always all over the place. He or she thinks time is running really fast. उससे कोई सवाल करो, छलांग मार के जवाब देने की कोशिश करे. On the other hand, जो confidence है, it takes its time. इंटरव्यू के अंदर भी whatever question throws on you, you take a pause, थोड़ा सा सांस लेते हैं, उसके बाद you respond. और आपके कोई फिलर वर्ड्स बहुत ज्यादा नहीं होते. फिलर वर्ड्स क्या होते हैं? मतलब कि जो है you know, I mean, like आजकल बहुत फेवरेट है, like ये like ये, तो ये like नहीं करना. ये इस तरह से है जैसे वो पहले वो एंटीनास होते थे तो अक्सर सिग्नल ड्रॉप होते थे टीवी पे शुरू हो जाता. तो ये वही इशू होता है अगर कम्युनिकेशन के अंदर ना बीच में सिग्नल ड्रॉप नहीं करना है. ये फिलर वर्ड्स डाल. इंस्टेड टेक पॉजेस. Take pause and then speak. Take pause and then speak. Take pause and then speak. Time is not running. आपको लग रहा है टाइम बहुत तेज भाग रहा है. You take your time. Winston Churchill के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी है Netflix की. He was considered as one of the most effective communicators of his time. He was leading Britain at a very controversial time जब वो World War के अंदर भी घुस गए, Civil War भी start होगी. तो उससे कोई पूछते होते थे लोग, उस सूटे लगाता था, सिगार पीता था, तो उससे पूछा लोगों ने कि Churchill, how do you stay so composed when even reporters ask you so many difficult questions? Civil War भी छिड़ी ली है, वहां पे जंग भी छिड़ ली है, तो उसने लंबा सा सूटा लगाया वहां पे. तो उसने इनहेल किया, फिर उसने एक्सहेल किया, उसके बाद उसने कहा कि whenever somebody asks me a difficult question, I take a long puff, I think about responding, and then I respond. I don't advocate that you start smoking from today onwards, but the lesson we learn from it that always take your time instead of jumping into responding. The last thing is facial expressions. Give me a big smile. Give me a smile. I hardly see 2 or 3 actual smiles. This is not smile, ladies and gentlemen. This is a threat. I tell you. This is actually a threat. This is not a smile. Smile is when your teeth are visible. Khas tauр pe upper teeth. Give me a smile again. One of the most beautiful tools of communication is learning how to smile. Learn how to smile. It will change your game of interactions. So imagine you enter, it is so contagious. It is so contagious. When you smile, people smile. And when you smile, अभी थोड़ा दिमाग को रश मिले डोपामिन का, स्माइल करके हंस रहे. When you smile, what actually happens is डोपामिन रश होता है और दिमाग के अंदर आपकी जो आपको स्माइल करवाए उसकी एसोसिएशन पॉजिटिव हो जाती है. आप इमेजिन तुम इंटरव्यू के रूम में एंटर हुए, you give a big smile, you say अस्सलाम वालेकुम, how are you? The other person will automatically smile. And they are already liking you because you have a very genuine. ये वाली नहीं, Colgate का इश्तिहार नहीं है, you know. So you will learn how to balance it. इसका तरीका ये होता है, अब ये मसल बेचारे कभी स्ट्रेच नहीं हुए सही तरह से, या तो जोर से हंसना आता है या तो ऐसे तक करना आता है. कभी कभी हमें लगता है पता नहीं मैं अच्छा नहीं लगूंगा, स्माइल करते भी ये क्या होता है? Let it out. You look more beautiful whenever you smile. जैसे तुम्हारे दांत नहीं सारे भी गिर गए ना, फिर भी you look pretty when you smile. ये कुछ ये नेचुरल है कुछ, you know. और उसके साथ मुझे एक और बात भी याद आ गई, वो भी मैं कर लूं कि how you smell it matters a lot. स्मेल की बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्नोटेशन होती है ब्रेन के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग. वेयर अ वेरी गुड परफ्यूम, बाय अ गुड परफ्यूम. ड्रेसिंग के साथ साथ हाइजीन. हाइजीन, बेसिक हाइजीन, तो योर ब्रेथ शुड नेवर स्टिंक. अगर इट स्टिंक्स तो फाइंड एन अल्टरनेटिव फॉर दैट. आपको वो मिलती हैं चिंगम्स मिलती हैं कुछ, नेक्स्ट है बहुत अच्छी, अगर आप वो अपने पास रख लें. हमारे यहाँ खवातीन को तो फिर भी पर्सनल हाइजीन का बहुत पता होता है, लेकिन लड़कों को नहीं पता होता. और हमारे सब कॉन्टिनेंट में मसाले खा के आधों के मुंह से बदबू आ रही है. अगर आपसे कोई स्टिंग आती है, अच्छी खुशबू तो दूर की बात है ना, अगर तो स्टिंग आती है तो माय गॉड, नोबडी विल एवर वुड लाइक टू टॉक टू यू. इतने नेगेटिव. आपको कभी ऐसा हुआ है कि बहुत अरसे पहले कोई स्मेल सूंघी और अचानक से सूंघे, आपको एकदम से नॉस्टैल्जिया होता है. इट ब्रिंग्स यू बैक टू दैट मेमोरी. इट इज सो पावरफुल. स्मेल फौरन से कोई स्मेल होती है जिसकी जगह की वो एसोसिएशन बिल्ड करती है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव. तो इफ यू वेयर अ गुड थोड़ा सा एक्सपेंसिव परफ्यूम, तो इट elevates your image in the mind of other person. और दूसरा ड्रेसिंग मैटर्स अ लॉट. कभी भी किसी फूड को तुम्हें ना बताने देना
कि ड्रेसिंग मैटर नहीं करती, इंसान अंदर से खूबसूरत होता है, अंदर से जितना वैसे खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत सारे तो, लेकिन जो है वो ड्रेसिंग के ऊपर थोड़ा सा काम जरूर करना है, एटलीस्ट यू लुक प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेबल में ये है कि अच्छी प्रेस हुई भी जो चीज आप पहने तो वो भी थोड़ी अच्छी लगती है। बेशक कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं कह रहा कि आप क्लोथिंग करें, बट व्हाटएवर यू वेयर, यू वेयर इट ग्रेसफुली। और दूसरी जो भी पर्सनल हाइजीन की चीजें होती है, कमिंग बैक टू फेशियल एक्सप्रेशंस, सबसे ज्यादा जो मसल्स होते हैं किसी भी बॉडी पार्ट में वो फेस के होते हैं, सबसे कम इस्तेमाल होने वाले गरीब मसल्स भी जो है वो फेस के हैं। लर्न हाउ टू यूज योर फेस, लर्न हाउ टू प्ले विद योर आईज फॉर एग्जाम्पल। Even if you're listening and you're not speaking, you squint your eyes a little bit and you nod your head. It gives a message कि तेरी बात मुझे बहुत हैवी समझ आ रही है। अब जो सुनाने वाला उसे इतना मजा आएगा, वो सारी ऑडियंस को छोड़ के तुम्हें देख के सुना रहा होगा, उसे लगेगा इसको बहुत समझ आ रही है, ये तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। But if you squint your eyes a little bit and you nod a little, so it gives a very strong message that that person is listening. आप full of room के अंदर हैं और आप नहीं बात करें बगैर कुछ कहे, उन्हें लिस्टिंग एंड भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। तो प्ले विद योर, लर्न हाउ टू प्ले विद योर आईज, लर्न हाउ टू यूज योर स्माइल, लर्न हाउ टू गिव एक्सप्रेशंस। इफ यू हैव अ पोकर फेस, वो फेस होता है जिससे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। अगर आपका पोकर फेस है तो आप अगले बंदे को परेशान कर देंगे कि इसके अंदर चल क्या रहा है, ये खुश है, परेशान है, खफा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड दिस पर्सन। यू विल बिकम अ मिस्ट्री बॉक्स। देखा, मिस्ट्री बॉक्स खोलो तो अंदर से कुछ भी निकल सकता है। तो when you become a mystery as a person, तो intimidates the other one, ये irritate करता है बंदे कि बिल्कुल ही पोकर फेस है। तो आपके चेहरे के ऊपर वार्मथ होनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने आप को किसी ना किसी सिचुएशन में रिकॉर्ड करें, अपनी वीडियोस खुद करने लगे, सेल्फी कैमरा ऑन करो, रखो और आप किसी बारे में भी बात करना शुरू कर दो, एक पॉडकास्ट करना शुरू कर दो, यू नो। और 5 मिनट की जब तुम एक रिकॉर्डिंग करोगे उसके बाद अपने आप को जरा एज ए थर्ड पर्सन देखना, तुम्हें पता लगेगा ये क्या कर रहा हूँ, I should not appear like this। और अगर आपको किसी ने फीडबैक दिया है, कभी भी कोई अगर आपको फीडबैक दे, मैं कभी क्लोजिंग पे जा रहा हूँ जी, सिर्फ मुझे 5 मिनट दे, 5 मिनट तक, ठीक है। तो what was I saying? फीडबैक अगर आपको आपके दोस्तों ने दिया फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कभी भी ये एटीट्यूड ना रखना आई एम द वे आई एम, मैं तो ऐसे, अगर ऐसे फिर तो मर जाओ। There is no point of doing another if you think that you have reached to a certain stage where ultimate stage पे पहुंच जाओ। मैं अपनी वो गोकू की जो ultimate stage होती है, मैं वो अल्ट्रा स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, यहाँ से तो कुछ भी नहीं है। पहले सोचना था मैं तो ऐसा ही है, आप कोई फीडबैक देता है यार तुम बोलते हो तो ऐसा लगता है लड़ रहे हो, नहीं आई एम द नाइसेस्ट पर्सन, मेरे से तो नाइस बंदा है, तुम्हें पता नहीं क्यों लगता है मैं लड़ रहा हूँ। या किसी कोई तुम्हें आ गया था यार तुम्हें लगता है हर वक्त तुम अजीब कूड़े से रहते हो, तुम्हारा इस तरह का होता है फेशियल एक्सप्रेशन, अगर नहीं पता नहीं, आई डोंट नो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। Take that feedback with an open heart and think about that what exactly am I doing that is creating that perception of mine। मेरी टोन का कोई इशू है, मैं बहुत लाउड बोलता हूँ, या मैं what do I do that sends that message, because आप कुछ कर रहे हो, कोई स्टिमुलस या मैसेज नॉन वर्बली या वर्बली दे रहे हो जिससे वो इमेज क्रिएट हो, ठीक है। नाउ आई क्लोज माय सेशन, और मेरी क्लोजिंग की बात ये होगी कि जहां से मैंने शुरू किया था वो अशरफ मखलूकात वाली कहानी, दोबारा मैं आपको वहीं पे लेके आ रहा हूँ कि we humans we can change, the good thing about us that we can change। बाकी कोई क्रिएशन जो है वो अच्छी अपनी मर्जी से चेंज नहीं हो सकती। एक दरख्त है ना, अगर वो सेब का दरख्त है तो वो नहीं कह सकता कि कल से मैंने माल्टे प्रोड्यूस करने या आम प्रोड्यूस, वो सारी जिंदगी सेब प्रोड्यूस करने। अगर कोई वो K2 एक जगह पे प्लेस है तो वो नहीं कह सकता कि मैंने मार्गला हिल्स के साथ जाके जो है वो कल प्लेस होना है, because I want to do it। They cannot do it, but we humans, what distinct us is that we have this capacity to change and change yourself also and help others to change। बल्कि हम तो उल्टा दोस्तों को भी कह रहे होते हैं कि यार ऐसे ही नहीं सारी जिंदगी, इसी वजह से गाली देता आप कह रहे हो जैसे चलो तो आज 10 साल बाद ही वैसे, you should be expecting others to also change and you should also change। You should reflect on yourself कि अभी मैं graduation से निकला हूँ तो 1 साल के बाद I should be a very different person in terms of betterment। हजूर पाक की दुआ भी जो मुझे बहुत पसंद है और हमेशा मैं थोड़ी करता हूँ कि या अल्लाह मेरा आने वाला कल मेरे गुजरे हुए कल से बेहतर हो, which means that I'm becoming a better person every day। जितना सीखते रहोगे उतनी, एक लॉन्जिटिविटी के ऊपर रिसर्च हुई थी, सबसे लंबी रिसर्च जो ह्यूमंस के ऊपर हुई है, दैट वाज ऑन लॉन्जिटिविटी ये कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो इंसान को ज्यादा देर तक जिंदा रखते हैं। उसमें सबसे टॉप पे था
a person who learns something new, क्योंकि आपकी actual नए neural connections या neural patterns दिमाग के अंदर form हो रहे हैं, जितना दिमाग healthy रहेगा उतनी body healthy रहेगी. तो अपने आप को learning की journey में involve रखिएगा और इस चीज के ऊपर focus करेगा. जो भी हमने चीजें सीखी हैं इसमें से सिर्फ एक चीज पकड़ लें. इस कमरे से अगर बाहर जाएं तो कोई एक चीज implement करें. बेशक मेरी बाकी की सारी कहानी भूल जाएं, इसमें से कोई एक चीज शायद आपके दिल को क्लिक की हो. This is something that I should do or I should work on. Start with that and implement that. अगर आप वैसे ही रहेंगे इस कमरे से बाहर, मैं कह रहा हूँ चेंज हो जाओ. तो अगर वैसे ही रहोगे कमरे से बाहर तो मेरे आने का मकसद भी पूरा नहीं होगा और आपके यहाँ बैठने का मकसद भी पूरा होगा. फी मान अल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें. Lots of blessings to you and lots of praise. Thank you very much. See you again.